Good morning to all. Today we'll read in course book, English course book. The chapter is chapter 5, Celebrating Earth Day. What it means? Earth Day means it is the birthday of our Mother Earth, and we are celebrating it with joyful and with cheerful. And this is story about school students, how they are preparing to celebrate the Earth Day. Here is a story. It is the story of celebrating the Earth Day. The students of class 3 are having a fancy dress competition. They want to spread the message of saving our earth. Read how they do it. This is the student of class 3 and they had prepared themselves to celebrate fancy dress in their school, and it was told to have a theme of saving our earth, saving our Mother Earth. How we can save our Mother Earth? This was presented by class 3 students. Miss Carney has some important news. Children, I have exciting news for you. 22nd April is Earth Day. We will have a fancy dress competition on that day. Each of you must dress up as a tree, a cloud or an animal and talk about yourself. Fancy dress competition. Fancy dress, what fun! The children think and talk about what to do. How would I look as a homeless tiger? Maybe I can come as a plastic bottle and talk about recycling. It is the day of Earth Day. The hall is full with parents and teachers. Class 3 proudly presents the Earth Day parade. Our students will tell us how to care for our planet. When Miss Carney, when class 3 teacher Miss Carney has informed the students to celebrate Earth Day and they have to get up a fancy dress competition and all children will be in other form. Maybe somebody in tree form, cloud, animal, whatever it is. They as they like. The students are prepared themselves and talk to each other that they will be in fancy dress competition. One of the girls said that she will present herself as a homeless tiger. Homeless tiger means जैसे आजकल जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जंगल और नहीं है, तो जंगल के अंदर जो भी जानवर है वो सब उनके घर चले जा रहे हैं, उनसे घर उनका छीना जा रहा है। और टाइगर कहाँ रहता है? जैसे जंगल में रहता है, और अगर पेड़ काटे जाएंगे तो जंगल नहीं रहेंगे, तो टाइगर, लायन, जेब्रा, बियर ये सब कहाँ जाएंगे? जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो लोग होमलेस हो जाएंगे। तो क्लास 3 की लड़की बोलती है कि मैं अपने आप को होमलेस टाइगर के हिसाब से प्रेजेंट करूंगी। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मैं प्लास्टिक बोतल अपने आप को बना के रिप्रेजेंट करूंगी और बताऊंगी कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। जैसे प्लास्टिक हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, और वो फेंका हुआ प्लास्टिक को इकट्ठे किया जाता है और उसको रिसाइकल करके फिर से उसको बोतल का रूप दिया जाता है। देन Arvind Gopalan walks on stage. One of the boy named Gopalan वो स्टेज के ऊपर जाता है। थोड़ा नर्वस था बट एक्साइटेड, खुशी थी कि वो अपने आप को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। I am a bus. Use me instead of a car. Reduce pollution. Prevent traffic jams. Save money. Thank you. तो जो लड़का अरविंद गोपालन था वो अपने आप को बस बनाया हुआ था, बस, ठीक है, गाड़ी, और वो बोला कि मुझे यूज कीजिए ना कि कार को।
क्योंकि अगर बस में लोग जाएंगे तो कार, बाइक ये सब वो यूज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, पेट्रोल भी सेव होगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगी। तो इसीलिए अपने आप को बस बना के रिप्रेजेंट किया और बोला कि मुझे यूज किया जाए। शबनम खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक लड़की स्टेज पे आई और वो अपने आप को रिप्रेजेंट की और बोली कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाता है। आई एम ए बल्ब, वो बल्ब बन के आई थी। आई एम ए बल्ब, स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे ही रूम को लाइट बिना बंद किए चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, सेव नहीं होती है। तो हमें हमेशा जब हमें रूम में लाइट की जरूरत नहीं है उस वक्त हमें लाइट को ऑफ कर देनी चाहिए। देन गोपाल सिन्हा टेल्स अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट। गोपाल सिन्हा एक लड़का है, वो स्टेज के ऊपर आता है और वो गार्बेज बिन बन के आता है। गार्बेज बिन मतलब कि जो भी वेस्ट है हम उसको इधर उधर ना फेंके और एक ही जगह पे फेंके ताकि उसको रिसाइकिल बाद में किया जा सके। I am a garbage bin. Here are some things you can recycle. This is an aluminium can and this is a newspaper. तो रिसाइकल को, जो चीज़ रिसाइकल होता है उसको अगर हम सही जगह पे डालें तो वो दूसरी बार उसको रिसाइकल करके उसी प्रोडक्ट को उसको फिर से वापस ला सकते हैं। जैसे रिसाइकल क्या हो सकता है, एल्युमिनियम कैन, जैसे हम थम्स अप या फिर कोक जो टीन वाला आता है ना उसमें, तो उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो अगर उसे हम गार्बेज बिन में फेंकेंगे तो वो फिर से रिसाइकल होके फिर से वो बन के वापस आएगा। और न्यूज़पेपर को हम इधर उधर फेंकते हैं, अगर न्यूज़पेपर को भी लेके हम रिसाइकल करें उससे भी पेपर बन के वापस आता है। इफ यू रिसाइकल न्यूज़पेपर, each family can save 2 trees a year. So please recycle to save our earth. Thank you. फिर वो बोलता है कि न्यूज़पेपर को अगर हम रिसाइकल करते हैं उससे पेपर बनता जाएगा, हमें और पेड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे पेड़ भी सेव हो सकते हैं। The next, टेरेसा लीव स्पीक्स ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स। टेरेसा लीव एक लड़की है जो होमलेस टाइगर बन के आई है और बोलती है, I am a tiger and my home, the forest, has been cut down. It is difficult to find food. There are not many tigers left in India. Please save me and my friends. तो जो टाइगर बन के आई है वो क्या बोलती है कि मेरे पास मेरा घर छिन गया है क्योंकि जंगल नहीं रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके वजह से हम अपना घर खो चुके हैं। इसलिए हमारी हेल्प कीजिए, हमको सेव कीजिए और मेरे फ्रेंड्स को भी सेव कीजिए। बिनीता टुकी आस्क्स अस टू सेव ट्रीज। बिनीता टुकी एक लड़की है, वो ट्री बन के आती है। आई एम अ ट्री, आई गिव यू क्लीन एयर, फूड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन। यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, येट आई एम बीइंग कट डाउन, प्लीज सेव मी, थैंक यू। तो फिर वो पेड़ होके आती है और बोलती है, मैं तुम लोगों को बहुत सी चीज देती हूँ, क्लीन एयर देती हूँ, ऑक्सीजन देती हूँ, फूड देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ, मेडिसिन भी देती हूँ, फिर भी मुझे काटा जा रहा है, इसलिए काटना बंद कीजिए और मेरी लाइफ को सेव कीजिए। जमशेद नारिमन स्पीक्स अबाउट वाटर पोल्यूशन। फिर एक लड़का आता है, वो अपने वाटर पोल्यूशन के बारे में बताता है। आई एम वाटर, पीपल हैव पॉल्यूटेड मी, दे डंप गार्बेज इन रिवर्स एंड ओशंस, दे ऑल्सो वेस्ट मी अ लॉट, प्लीज यूज मी वाइजली, थैंक यू। तो फिर वाटर जो बन के आया है वो बोलता है कि लोग मेरे पानी को खराब कर रहे हैं, नदी के पानी को खराब कर रहे हैं, उसमें सारे गंदगी फैला रहे हैं और बेमतलब का पानी वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे सेव करो और पानी की बचत करो। Finally, all the children sing together. Every day is Earth Day, whether it's cold or wet or hot. Let us work to save our planets. It's the only one we have got. The parents and teachers clap for the children. They all decide to do their best to save Mother Earth. Will you do that?
ठीक है। तो फिर सब एक साथ मिलके गाना गाते हैं कि अर्थ डे सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, कि अर्थ डे सिर्फ 22 अप्रैल को हम नहीं मनाते हैं। अर्थ डे हर डे, और हर डे इज अ, एवरी डे इज अ अर्थ डे, और हमें अर्थ डे को बहुत अच्छे से मानना चाहिए। पेड़ को बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए, ठीक है। जंगल काटने नहीं चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस तरह हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। सो यू गो थ्रू द चैप्टर एंड रीड द स्टोरी, रीड द थिंग वेरी प्रॉपरली, and if you are getting any problem, if you are getting any doubt, so text me in my number or call me. Thank you. Have a nice day.